नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू। नेशन नाउ आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। और उसके अलावा इन चाइनीज नी हाओ, इन जापानीज konnichiwa, प्रदीप जी। Abamyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And Yes. which is absolutely amazing. We're getting a lot of response from South Africa, from Kenya, Yes, and yes. even from Nigeria, which is Bilkul. absolutely amazing. Hi, hello Africa, how are you? I'm so happy that we've got viewers over there. We've got viewers in Delhi, we've got viewers even in Bihar, in Jamshedpur, and I was very, very surprised to see that there are some people in Chennai watching us, which is fantastic. Yes, yes. Right. So I'm very sorry. My apologies. I don't speak Tamil, but I promise to learn. A lovely language, one of the oldest languages in the world, one of the oldest living languages in the world. In fact, it is possibly, as people, as most people who are Tamil speaking argue, it is older than Sanskrit. Yes, it is. That's what they say. It's an ancient, old language. God, India is a great place. Lovely to be alive, lovely to be in India. And look at what's happening over here in India. Hindustan में क्या हो रहा है? देखिए साहब, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? We are of course in the greatest state, in the greatest country in the world. We are in Maharashtra. I love Maharashtra absolutely. और प्रदीप जी, जिस प्रकार अभी चुनाव का माहौल चल रहा है महाराष्ट्र में, ये माहौल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। It's beautiful. क्या बात है साहब, जबरदस्त। I mean, it's really and truly lovely. Look at just Mumbai itself, or look at Konkan, or look at Vidarbha, or look at Western Maharashtra, Khandesh. It is out of the world. Marathwada, wow, beautiful, absolutely beautiful. The kind of cultural differences that you find, the kind of differences that you find from village to village and elsewhere, you won't find that anywhere else. That you find in Maharashtra. Fantastic. I hope we don't become a unipolar state, as in everybody. I object to those people who try to paint everybody with the same brush. You know, our diversity is our strength, and I hope we continue to cherish that. Pradeep ji. Yes, you're talking about polarized world, and you're talking about a world that probably BJP wants. But the Congress accuses the BJP of being getting the whole India polarized to two levels. But things are different. Things are working differently. BJP is talking about the economy. When you look into what people talk and what they talk about 1 trillion economy. We are moving towards 1 trillion economy. Modi is driving this India in a big way where economy is concerned, with IMF and global agencies rating India as the fastest growing economy. So when we talk about economy, and we saw what Indo-China relations have a new leap where Indo-China relations are, which you always keep praising, and that has been achieved back to 2022. 2020. Pre-April 2020. And we are talking about economic fusing of economic thoughts and ideals and goals where economy is concerned, and probably I think we talk about axis Russia, China, and India. और प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है, if this axis gets together, then you're going to control the whole globe. It is already together. Yes. एक चीज याद रखिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों ने, अब क्या हुआ है कि हिंदुस्तान ये बहुत पहले से डिसाइड कर रहा था, बहुत पहले से हिंदुस्तान इस पे काम कर रहा है, पिछले 20 सालों से। याद रख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त से भी पहले से, कि किसी भी तरीके से जो यूएस डॉलर है, its position as the reserve currency of the world should be replaced, or we should have 2 or 3 different reserve currencies. उसको लेकर के जो इस बार ब्रिक्स के समिट में काम हुआ है, वो पहले कभी नहीं हुआ। और ये एक वजह है प्रदीप जी, मैं आपको बता रहा हूँ और अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, that the Americans are quite angry with what is happening in India, because India is in the forefront of leading the charge against the monopoly of the US dollar. और एक बार वो खत्म हो गई ना साहब, उसके बाद फिर आप देखिए, चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, रशिया हो गया, ब्राजील हो गया, किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ते हैं। अबाउट साउथ अफ्रीका, ये 3 राज्य भी पकड़ लो तो यू टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट मार्केट इन द होल वर्ल्ड, व्हिच आर ऑल क्लोज टू ईच अदर, border states, the biggest market in the whole world. Look at the growth there. I mean, look at the economic opportunities there.
It's absolutely baffling. और सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि notwithstanding all the sanctions against Russia and Vladimir Putin, Putin was able to thumb his nose at the Americans by hosting the BRICS summit in Kazan, which had all the world leaders, which are the fastest growing economies in the world. So much for American power. And that's anyway, but that's a subject very, very close to my heart, and we can go on and on and on about it. But let's come back to the present and to the Maharashtra elections. महाराष्ट्र के चुनाव में प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई नया गाना शायद निकाला है, कोई बिल्कुल माशाल्लाह जबरदस्त कोई गाना है, BJP Maharashtra is going gung-ho. They are totally, absolutely confident और about the elections here. उसमें देवेंद्र फडणवीस जी की क्या तारीफ की गई है साहब, उनको तो मतलब ऑलमोस्ट स्तुति की गई है उनकी, तो Sir, एक तरह की आरती उतारी गई। BJP Maharashtra is calling Mr. Devendra Fadnavis Vikas Purush. Vikas Purush, now Maharashtra ke Vidata. That's the kind of thing. नव महाराष्ट्र के विधाता। Yes, Vidata. That's official. क्या In बात their Twitter है। handle, they're praising Dev Fadnavis ji. अरे क्या बात है। और त्राता Vidata. विधाता त्राता महाराष्ट्र Now Maharashtra ke Vidata. Vikas Purush. Right, so at the moment I think we've got a very, very distinguished panel indeed. After a long time from the BJP, Aarti Pugakar ji. Aarti ji, namaskar. नमस्कार सर। जय सिया राम, जय सिया नमस्कार राम। प्रदीप जी, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे जय मातरम, इतने महाराष्ट्र दिनों के बाद। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, क्या बात है। लेकिन आरती जी पहले तो ये बता दीजिए कि आप क्या हमसे नाराज थी, मतलब इतने 6-7 महीने से आप आई नहीं, मतलब क्या हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं थी। पार्टी ने थोड़ी जिम्मेदारियां बदल दी है, तो अभी मैं दक्षिण मुंबई भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी के नाते थोड़ी बाकी मैनेजमेंट में ज्यादा बिजी रहती हूँ। बट आई एम वेरी ग्लैड आई एम बैक एंड Congratulations, आई एम ma'am. स्टार्टिंग इट विद यू ऑल, सो इट्स अ क्या ग्रेट। बात है। लेकिन मुबारक हो आपको, आपका अभिनंदन, आपको पार्टी ने नई जिम्मेवारी दी, उसके लिए आपका अभिनंदन। डॉक्टर ढोने फ्रॉम अकोला, हाउ आर यू सर, फ्रॉम द कांग्रेस? नमस्कार। He always keeps up his promise once every week, Dhoni साहब. Absolutely. और ढोने साहब के साथ बात करके जो मजा आता है, मजा आ जाता है सर। आप तो जो है पूरा शो जब थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ढोने साहब कोई दिया सलाई छोड़ देते हैं बीच में, कोई आतिशबाजी छोड़ देते हैं बीच में, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है। किताबों को बहुत शौक है, किताबों से quote करना। फैंटास्टिक सर। और महमूद देशमुख साहब बड़े सीरियस लग रहे हैं, बड़े गंभीर लग रहे हैं। चिंता में है। देशमुख साहब क्या चिंता है आपको सर, बताइए। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद बोलिए सर। महमूद देशमुख साहब, सुन रहा हूँ मैं, आपको सुन रहा हूँ, आपको जो सुन दुख रहा हूँ बड़े गौर से। महमूद देशमुख साहब, आपका दुख हमारा दुख भी है, याद रख लीजिए। वाह वाह, क्या बात है। आपको मालूम होना चाहिए हम आपके साथ हैं। और जो बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ, जितना दुख आपको पहुंचा, जितनी ठेस आपके दिल को पहुंची, उतनी हम सबको पहुंची। हमारे बड़े अच्छे मित्र थे पिछले 35 साल से, आपको भी मालूम है। तो बगैर हम अपेक्षा करते हैं आप आपका पॉलिटिकल लड़ाई इस बार भी जारी रखेंगे वहां पर। जी बिल्कुल देशमुख साहब तो रखेंगे। बट फर्स्ट लेट्स गो टू आरती पुकारकर जी। आरती जी क्योंकि इतने दिनों के बाद आई हैं, सबसे पहले आरती पुकारकर जी आप बताएं, जहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक बहुत ही खूबसूरत गीत भी आप लोगों ने रिलीज किया है, न जाने उसमें क्या क्या बहुत आपने तारीफ करी है। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वेरी डियर फ्रेंड, एंड आई मस्ट टेल आवर व्यूअर्स दिस, देवेंद्र फडणवीस जी का सबसे पहला टेलीविजन पर इंटरव्यू आरकेवी शो में हुआ था, ये भी याद रख लीजिए। बहुत साल पहले जब हम लोग सहारा में हुआ करते थे, तब नागपुर से, he joined us from Nagpur, he was this up and coming MLA from Nagpur and everybody was praising him and this was his first interview. I still remember. तो आरती जी, महाराष्ट्र के लिए क्या स्ट्रेटेजी है अभी भारतीय जनता पार्टी की, बताएं। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने देवेंद्र जी के लिए जो गाना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है उसका उल्लेख किया, उसकी तारीफ भी की, क्योंकि ही डिजर्व्स इट। When we talk about Maharashtra, whether I specifically would like to mention when he was a chief minister since 2014 and then now when he is deputy chief minister, whatever projects, whatever decision, whatever schemes he's come up with, all those are foolproof schemes. And whatever he has started, he has made it a point कि वो end तक जाए. So there is nothing which he has started and left it in between. अगर मुझे उदाहरण ही देना होगा तो मैं मराठी भाषा को जो अभिजात दर्जा मिला है, which is very प्राउड थिंग फॉर ऑल महाराष्ट्रियंस,
सगळ्या मराठी भाषिक व्यक्तींसाठी, लोकांसाठी ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. कारण मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. And when Devendra ji sent a proposal to center, that proposal was foolproof proposal, and there was no loop, or there was no any loophole over there, and that is why it could happen. And मला मराठी असल्याचा खूप खूप अभिमान आहे आणि मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला आणि तो देवेंद्रजी पुन्हा एकदा प्रोसेसमध्ये असताना मिळाला, त्याचा खूप खूप आनंद आहे. So this is just one example which I have given. But when I talk about Atal Setu, nobody would have thought समंदर के ऊपर से इतना लंबा पुल जाएगा. And then he came up with a thought and he made it a point कि वो हो जाए. And very important thing is कि वो timely हो जाए. It is not something which has started today and the next generation is watching it, getting it developed. आरती जी, तो आप देख रहे हो कि मोदी जी is making India the fastest growing economy in the world as per the IMF, and देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पर 1 trillion economy की तरफ बढ़ रहे हैं. That's what Modi ji said. Exactly, and we call him as an infra man because whatever infrastructural developments are happening in Maharashtra, Devendra ji has played a very very big and important role into it. तो विकास पुरुष जो टाइटल आप लोग दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी को, विकास पुरुष, नव महाराष्ट्र के निर्माता, या विधाता, I thought विधाता was what I took it from the BJP Twitter Maharashtra handle. So yes, that's full praise for Devendra Fadnavis ji. So it's clear Devendra Fadnavis ji is your unquestionable leader in Maharashtra. Yes, absolutely. Fantastic. So I hope when the results come out, in case the NDA wins, जो महायुति है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप जीतेंगे तो अगले मुख्यमंत्री आपके देवेंद्र फडणवीस जी होंगे. मैं उम्मीद यही करता हूं. वो बात ऊपर के लेवल पे हमारे सारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बोल दी है कि जिनकी संख्या ज्यादा रहेगी उस हिसाब से वो होगा. यस, लेकिन इफ यू आस्क मी देन एज अ बीजेपी कैडर, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी हिम एज अ चीफ मिनिस्टर. एब्सोल्युटली. ढोने साहब, आपने अपना हाथ भी ऊपर उठाया था ऐसा करके. डॉक्टर ढोने, बोलिए सर प्लीज. नहीं अभी आरती मैडम ने जो बोले हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा प्लीज. कि भारतीय जनता पार्टी ने या महायुति ने अभी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमारी अगर सत्ता आती है देवेंद्र फडणवीस जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे. उन्होंने अभी जाहिर कर देना चाहिए. तो वो अगर जाहिर कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा. क्योंकि हकीकत यह है कि आज देवेंद्र फडणवीस जी की इमेज बहुत खराब हो चुकी है महाराष्ट्र में. सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें उनके बारे में अच्छी भावना है, जनता के दिल में उनकी भावना अच्छी, जनता के दिल में उनके बारे में कोई अच्छी भावना है नहीं. उन्होंने जो शिवसेना को तोड़ा, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा, तो उनके जो करीबी लोग हैं देवेंद्र फडणवीस जी के करीबी, नागपुर के एक पत्रकार है, एक मुंबई में पत्रकार है, जो उनके खास एक तो रिश्तेदार है, एक दोस्त है. उनको मैंने बोला एक बार कि भाई आप देवेंद्र फडणवीस के पास ऐसे लोग नहीं है क्या कि वो उनको बताया है कि भाई ये गलत हो रहा, देवेंद्र ये तुम्हारा गलत हो रहा, तुमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुमने ऐसा बोलना चाहिए, तुमने ये नहीं करना चाहिए. ऐसा कोई आदमी मुझे नहीं दिख रहा है उनके पास कि भाई उनकी जो गलतियां हो रही उनको गलती उनको दिखाए या कुछ उसमें सुधार लाने के लिए कोशिश करे. ऐसा कोई भी आदमी नहीं दिखा रहे, ऐसा दिख नहीं रहा. मैंने उनको बताया है बात कि भाई आपके पास ऐसा कोई नहीं है क्या, कोई लोग नहीं क्या, आप उनके दोस्त हैं तो उनके पास कोई नहीं ऐसे लोग नहीं है क्या. तो ये मैंने बताया उनके जो करीबी दोस्तों को जी. क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस जी की जो इमेज है, दोनों साहब 7,000 करोड़ का पुणे में अभी जबरदस्त हुंडई का प्रोजेक्ट हो गया. 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ के इंडस्ट्रीज वहां पर साथ लेके आए फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, महायुति मिला के. लाड़का भाऊ, लाड़की बहन, अब लाड़का शेतकरी. देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी शेतकरियों को, पानी, इरिगेशन प्रोडक्ट, 125 इरिगेशन प्रोडक्ट महाराष्ट्र को. धोनी साहब, डॉक्टर धोनी साहब एकदम विकास की तरफ ले रहे हैं. क्या आपको क्या कमी नहीं ऐसा है? नहीं देखिए, ये जो है ऐसा हमेशा जो चलता है कि भाई ये फॉरेन में गए, वहां पे उनको इतना ये मिला, फंड मिला या इतनी गुंतवणूक हुई है, जो बातें होती है उसके बाद पता चलता है कि महाराष्ट्र ही कंपनी गई, महाराष्ट्र की जो काम करने वाली कंपनी है वही जाके विदेश में गई और विदेश में उन्होंने वहां पे डिक्लेयर कर दिया कि हम महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने वाले हैं. ऐसे बहुत सारी बातें हैं. और कुछ कंपनियां तो ऐसे जिनको
बैन किया था, वो भी कंपनी बोल रही कि हम करने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर तो ढोने जो ये प्रदीप जो जी ने बातें आपसे है, सवाल ये पूछा सर, हवा, ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है जी कि कोई भी बात उसको है ना बहुत ग्लैमरस बढ़ा चढ़ा के बात भव्य जी दिव्य तरीके से बताने की उनकी आदत है। तो वो तो बाकी पार्टियों ने भी सीखने लायक है कि किस तरह से वो छोटी बात को बड़ा करके बताते हैं, लेकिन वैसे डॉक्टर ही सुधीर उनका है। ढोने तो ये कुछ महाराष्ट्र में आरती जी आई एम कोई कमिंग टू यू, गुंतवणूक नहीं आरती है। जी आई एम कमिंग टू यू, महाराष्ट्र जस्ट के वन जो मिनट प्लीज, आई नो यू महाराष्ट्र के रेज जो योर अच्छे फिंगर बट आई एम कमिंग टू यू, जस्ट वन सेकंड। डॉक्टर ढोने, प्रदीप जी ने हाँ, आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था सर, उसका तो जवाब दो। नहीं मैं बोल रहा कोई महाराष्ट्र में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, ये सब हवाई बातें हैं। सर पूरा सवाल तो सुन ले, आई डोंट थिंक यू हाँ हर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है, आई डोंट थिंक यू बोलिए। हर्ड हिम। हाँ हाँ द क्वेश्चन सर, क्वेश्चन इज, हाँ हाँ। क्वेश्चन इज सर, देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि उनकी इमेज खराब हुई है, बताए ना सर हाँ, प्लीज, एक सबसे पहले तो उनमें जो, हाँ बोलिए सर। हाँ, तो देखिए ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस जो है ना, उन्होंने सबसे पहले तो जब शुरू किया था कि मैं फिर से आऊंगा, मैं पुन्हा येईन जो बोले थे, उसमें लोगों को लगा कि ये अहंकार दिखा रहे हैं। मैंने तब उसी वक्त बीजेपी के जो वोटर है, ऐसे कई लोगों से बात किए थे, तो उनको भी ये बात पसंद नहीं आई कि बोले ये लोकशाही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें से अहंकार झलकता है, एक बात। उसके बाद जब पत्रकार ने उनको पूछा कि आप क्या शरद पवार बनना चाहते हैं, महाराष्ट्र के दूसरे शरद पवार, तो उन्होंने बोला कि क्यों, मैं शरद पवार क्यों बनूंगा, मैं तो देवेंद्र फडणवीस बनूंगा। और एक ध्यान रखिए कि अभी शरद पवार जी के राजनीति का एरा समाप्त हो गया है, ये उन्होंने बोले थे। बाद में उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने दिया शरद पवार साहब ने। ऐसा है कि शरद पवार साहब खुद की पार्टी चलाते हैं, उनके 54 एमएलए पिछले बार आए थे, उनके सांसद भी आज 8 लोग उनके सांसद बने हैं, वो खुद की पार्टी चलाते हैं, वो लोक नेता है। और देवेंद्र फडणवीस अगर कमल निशानी छोड़ के अगर लड़ते हैं इंडिपेंडेंट या खुद की पार्टी बनाते हैं, तो वो नगर सेवक करके भी चुनाव नहीं जीत सकते, ये हकीकत है। तो बड़ा नेता तो शरद पवार है, तो उन्होंने उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बोले कि शरद पवार की राजनीति का एरा समाप्त हो गया और मैं क्यों शरद पवार बनूं, मैं तो देवेंद्र फडणवीस बनूंगा। तो ये जो अहंकार की बातें हैं आम पब्लिक को अच्छी लगती नहीं है। आरती तो जी also, ये गांधी जी का देश है, यहाँ पे सादगी को ज्यादा महत्व है। तो ये ऐसे अहंकार को नहीं चलता, एक बात। उसके बाद उन्होंने जो शिवसेना फोड़ी है, आपको एक बात बताओ, देवेंद्र फडणवीस जी से हमारे अच्छे संबंध है और उनके बारे में हमारे दिल में सहानुभूति है, लेकिन उनके पास हमें कोई दिखता नहीं। हम तो उनको बताएंगे नहीं कि आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो विरोधी पार्टी में। तो लेकिन हमें पक्का मालूम है कि उनके पास कोई सलाहकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी चापलूसी करने में रहते हैं कि भाई हाँ देवेंद्र जी आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। उनको कोई सुझाव देने का किसी में साहस नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जब सुनिए, शिवसेना जब उन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े किए और शिंदे साहब को शिवसेना दी, भारत यानी निर्वाचन आयोग ने और कोर्ट के थ्रू जो किया है, उसके बाद लोगों में बहुत बुरी भावना हुई कि ऐसा क्यों। देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोलना चाहिए था कि इसमें मेरा कुछ नहीं रोल, भाई वो खुद ही गए। लेकिन वो बोले कि मैंने बदला ले लिया। तो ये बदले की भावना जो रहती है, ये जिस तरह से बात की उन्होंने, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा, तो इस पर ये वजह से जो है कि देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में जनता में अच्छी भावना नहीं है। डॉक्टर ढोले, I want a small intervention. आरती जी, a small intervention from you because महमूद देशमुख साहब has not spoken so far. बताएं आरती जी, प्लीज गो अहेड। आरती जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, आपकी आवाज ठीक से आ ही नहीं अभी थी, आई है, but, अभी जी आवाज हाँ, आ रही है। जो भी बातें अभी मैंने सुनी उसके बाद मैं कांग्रेस के लिए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। उद्धव जी ने क्या किया, शरद पवार जी ने क्या किया, फिर उनके बारे में देवेंद्र जी ने क्या किया, इस सब में वो ना ही बोले तो बेहतर है। क्योंकि शिवसेना, अगर उद्धव ठाकरे जी की बात करें तो 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ज़्यादा चुन के आए थे, तभी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि मुंबई महानगर पालिका में हम फिर भी यूटी में शिवसेना के साथ रहेंगे। और उसके बाद जब मनसे के 7 नगर सेवक तोड़ के उद्धव जी ने अपनी पार्टी में लिए थे, तब उन्हें कोई ये सलाह देने गया नहीं था। जब शरद पवार जी ने क्या किया ये बोलने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन जब उन्होंने भी इसी तरह का
पार्टी विभाजन किया था, तब उन्हें कोई सलाह देने गया नहीं था। भले अभी हम उसके बारे में अगर बात नहीं भी करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कहना है कि देवेंद्र जी ने जो भी काम किए हैं वो सब दिखावा है, बढ़ा चढ़ा के हम बात करते हैं। भाई साहब, आप कोस्टल रोड पे एक बार जाइए, भाई साहब आप समृद्धि महामार्ग पर एक बार जाइए, भाई साहब आप अटल सेतु पर एक बार जाइए। ना तो उसकी लंबाई किसी ने कम ज्यादा बताई है, ना तो उसके ऊपर का काम। एक बार गए थे नाना पटोले जी, कहीं पे क्रैक आई है बताने के लिए, तो किस तरह से अपने मुंह पर गिरे वो पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। और जो शाश्वत विकास हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता अपने आंखों से देख रही है, और आने वाले चुनावों में ये बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। राइट, लेट्स गो टू महमूद देशमुख साहब। महमूद देशमुख साहब जी, जहां तक आपका प्रश्न है, आप मुझे बताइए, क्या इस सरकार ने, अभी जो सरकार है 2.5 साल जिसके अभी खत्म होने वाले हैं, और उसके पहले जो 2.5 साल सरकार थी, क्या इन लोगों ने असल में जहां पर आपका काम है, स्लम्स में, झोपड़पट्टियों में, वहां पर लोगों के पुनर्वसन के लिए क्या असल में दिल से प्रयत्न किए हैं या नहीं किए? बताएं। बजाज साहब नमस्कार। नमस्कार। देखिए एक बात, अभी इन्होंने जो बातें उपस्थित की यहाँ पे, जो आरती मैडम है, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर एक गीत बनाया गया है, विकास पुरुष, फलाने ठिकाना, नव महाराष्ट्र का निर्माता, है ना। इस तरीके से एक चीज तो साबित हो रही है कि पिछले 2-2.5 साल में जो मुख्यमंत्री महोदय जो एकनाथ शिंदे जी थे, ये फेल रह चुके हैं। इसलिए ये अब ये नया मतलब प्लेयर ये प्रमोट कर रहे हैं, नया कैप्टन ये प्रमोट करने का ये काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये दिखा रहे हैं कि मतलब एकनाथ शिंदे जी ने कुछ काम नहीं किया, जो भी कुछ काम किया है वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है ना। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ, आप अगर स्लम की बात करेंगे या देवेंद्र फडणवीस जी, देखिए उनके पास होम डिपार्टमेंट है जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में, जैसे कि विनोद घोषाल जी के बेटे की हत्या हुई, दिन दहाड़े मतलब हत्या हो जाती है, सरेआम उसका वीडियो बनाया जाता है। बदलापुर में बच्ची के साथ में गलत हो जाता है। यहाँ पे बांद्रा भी, इसके अंदर हमारे यहाँ पे एक एक्स मिनिस्टर, एक एमएलए, उनकी हत्या होती है। और भाईखला में एक हत्या हो जाती है राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ के ही तालुका अध्यक्ष का। तो ये क्या कहता है, क्या कहलाती है ये बात है? लॉ एंड ऑर्डर टोटल फेल हो चुका है मुंबई शहर में। इनके राज्य में सिर्फ और सिर्फ मतलब माफिया लोगों का मतलब भरमार रहा है। ये सब फेल हो चुके हैं अपने काम में। लेकिन फिर भी अगर कैसा है इनका स्वभाव, ये झूठ बोलो लेकिन जोर से बोलो, ऐसा है। एक झूठ को 10 बार बोलने का इनके पास फार्मूला है, जो गोबेल्स का जो फार्मूला है ना, कि एक झूठ अगर आप 10 बार बोलोगे तो 11वीं मर्तबा उसको सच माना जाता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है। अब एक नया शगुफा छोड़ दिया इन्होंने, नव महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र तो बहुत पहले से महाराष्ट्र बना हुआ है, और ये महाराष्ट्र बनाने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है, उसमें ये कहीं नहीं थे, ये भूलना नहीं चाहिए इन लोगों ने। और महाराष्ट्र, ये देखिए अभी वक्त खत्म हो गया है, अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और कुछ दिनों की बात है, आने वाले कल में महाविकास आगाड़ी की सरकार बनेगी इस महाराष्ट्र में। और ये जहां है जो कह रहे हैं वो बात जहां के वहां धरी रह जाएगी। देशमुख जी, आप जिस क्षेत्र से आते हो, जीशान सिद्दीकी, कांग्रेस इंडिया अलायंस छोड़कर वो आज अजित पवार गुट में ज्वाइन कर लिया। क्या ये संकेत नहीं है कि काम कौन करता है? क्या ये संकेत नहीं है कि डेवलपमेंट किस तरफ है? क्या ये संकेत नहीं है कि लोगों में विश्वास किधर है? लोगों में सिक्योरिटी के विश्वास किस सरकार पर है? जीशान सिद्दीकी खुद इंडिया अलायंस के एमएलए रह चुका है, वो आज अजित पवार जी को ज्वाइन कर लिए, तो ये क्या दर्शाता है देशमुख जी? ऐसा है प्रदीप जी, एक बात सुनिए। पहली बात तो मुझे आप बताइए कि अजित पवार जी ने जो मतलब अलग से जो मतलब बीजेपी ज्वाइन की, वो किस बेल पे ज्वाइन की? अजित पवार जो अलग हुए पवार साहब से, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में उनके बारे में कहते हैं कि 70,000 करोड़ का इरिगेशन घोटाला हुआ है, अजित पवार ने घोटाला किया, सरेआम पब्लिक मीटिंग में कहते हैं। और 4 दिन के बाद में वही अजित पवार जो है इनके साथ में जुड़ जाते हैं और डिप्टी सीएम बन जाते हैं, मतलब शिंदे सरकार के पार्टनर बन जाते हैं। तो वो ईडी के वजह से वहां चले गए। और अगर उनके साथ कोई जुड़ रहा है तो मैं समझता हूं ये भी एक भ्रष्टाचार वाला मामला है। भ्रष्टाचारियों का समूह एक जगह पे आया हुआ है, ये आप मान के चलिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीशान सिद्दीकी जो है वो डर के मारे गए हैं इधर। जो 3 व्हीलर जो सरकार रही है, सुनिए मेरी बात,
ये जो 3 व्हीलर सरकार है इस महाराष्ट्र के अंदर जो अब खत्म हो चुकी है, जी। ये टोटल जो है ईडी और सीबीआई के डर से और भ्रष्टाचार के जितने भी मतलब सरगना है वो सब मिलके इन्होंने एक सरकार बनाई है। अब इनका वक्त खत्म हो गया। और अगर कोई जा रहा है आज अजित पवार के साथ जा रहा है तो ये उनका मसला है, लेकिन वो अजित पवार के साथ नहीं है, ये इनडायरेक्टली वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, समझे कि नहीं? जी। तो अब आने वाले कल डॉक्टर में ढोने, विधानसभा चुनाव में इस देश यहाँ की जनता जो है, इस महाराष्ट्र की जनता, जी। अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे जी हो या और भी हो, वो उनको उनकी जगह दिखा देगी। डॉक्टर ढोने, भारतीय ये ऐसा जनता है। पार्टी की तरफ से, सर सवाल सुन ले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बाकी राजनीतिक विशेषज्ञ जो है उनकी तरफ से यह बात आ रही है कि कांग्रेस बहुत घबराई हुई है। हरियाणा में जो आप हारे हैं, जहां पर आप जीतने वाले थे, और हमने भी बोला था आप जीतने वाले हैं सर, बच्चा बच्चा वहां का बोल रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा जाता है इतनी बढ़िया तरीके से बूथ मैनेजमेंट करी, इतनी बढ़िया तरीके से वो जो एक कास्ट फॉर्मूला जो है वो जबरदस्त तरीके से किया कि इसके बावजूद कि उनको 39.9% वोट मिले, आपको 39.4% वोट मिले, फिर भी जो डिफरेंस था सीट्स में 11 का आ गया। They got 47 seats, you got 36. क्या जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है डॉक्टर ढोने सर? नहीं, ऐसा है, हरियाणा में जो हुआ ये वहां पे ऐसी पोजीशन थी कि वहां हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही। सब आप जो बोल रहे बच्चा बच्चा बोल रहा था, तो ये उसमें क्या हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस का, उसमें लड़ाई चालू हो गई। फिर ये लोगों ने अंदर से अपना काम दिखा दिया कि नहीं ये आया ये होगा तो मुझे नहीं बनाएंगे, तो ये सब। और वो जो हुड्डा जी थे उन्होंने गलत लोगों को टिकट दिया। ये सब गलतियां कांग्रेस के नेताओं की है, जो 3 बार हारे उनको टिकट दिया तो कि मेरे खेमे के लोग रहने चाहिए, तो ये कांग्रेस के नेताओं की गलती है। उसमें फिर बाद में जब मीटिंग हुई दिल्ली में तो ये रणजीत सुरजेवाला और शैलजा कुमारी को मीटिंग में भी बुलाया नहीं गया, क्योंकि राहुल गांधी है, तो हमारे नेताओं की गलती है उसमें। पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं है। हमारे नेताओं में जो अहंकार, ये मध्य प्रदेश के कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो, ये सब अहंकार की वजह से हारे हैं, दूसरा कुछ नहीं। वैसे ये हुड्डा जी भी अहंकार की वजह से हारे हैं। ये अहंकारी लोग हैं, इन्होंने कांग्रेस को पीछे लाने का काम किया है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी घूमते रहते हैं, आप करते हो, आप दूसरों को एक्यूज करते हो, पोलराइजेशन, आपको अपीसमेंट, तुष्टीकरण के राजनीति धोने साहब आप करते हो, कांग्रेस का आरोप है। सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद की बात की है, आपने सैफरन को टेररिज्म से जोड़ने का काम किया। सुशील कुमार शिंदे जी ने फिर बयान को बाद में अभी रिसेंटली पलट दिया कि उनको फोर्स किया गया था सैफरन टेरर को बोल। तो ये अपीसमेंट, तुष्टीकरण का राजनीति आप पे आरोप है, आप करते हो धोने साहब। नहीं, ऐसा है कि वो सुशील कुमार शिंदे जी अभी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब उन्होंने नक्की मैंने क्या वो बोला ये मैंने देखा नहीं, सिर्फ अखबारों में पढ़ा है। अखबार वाले भी जो बोलते हैं, जो आदमी बोलता है, नेता क्या बोलता है और वो क्या लिख देती, ये बातें सब होती है। लेकिन ऐसा है कि वो भी सीनियर नेता है, उन्होंने जो थोड़ा बहुत बोला होगा उसका ज्यादा बड़ा। भगवा दहशतवाद ये जो शब्द है, ये कौन बोलेगा उनको? ये खुद ही है, मैंने उनको देखा है, सुशील कुमार शिंदे जी को ये कई बार मैंने देखा है। मुझे लगता है कि अरे इन्होंने ऐसा गलत बोल दिया, मैंने खुद देखा है। जब ये अभी की बात नहीं कर रहा, मैं जब सीएम थे तब से देख रहा हूं मैं कि वो जब कभी बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे जनता की नब्ज मालूम है कि जनता को क्या पसंद है नहीं पसंद है। तो मुझे तब भी लगता था कि यार ये गलत बोल रहे हैं। तो या कोई नेता ने बोला तो इसका मतलब ये पार्टी का मत तो हो नहीं सकता। अब वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड पर्सन हो गए। आप हाथ हो रहे हो धोने साहब, अभी इसका शायद इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट होने लगा। आरती जी क्या ये इफेक्ट हो रहा है? बिफोर वी गो टू आरती जी, 1 मिनट मैम, 1 मिनट। ढोने साहब, आपने बात करी अहंकार की, आई एग्री विद यू टोटली, आपके साथ मैं टोटली सहमत हूं। अशोक गहलोत जी राजस्थान में, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, क्या वंडरफुल कॉम्बिनेशन है सर आपका। और साथ में मिस्टर हुड्डा सीनियर एंड जूनियर, दोनों ने मिलकर के कांग्रेस की ऐसी की तैसी कर दी। तो सर बराबर है। तो सर नाना पटोले जी के बारे में क्या कहेंगे सर? आप हाथ जोड़ करके पूछ रहा हूं आपसे। नाना पटोले जी जो बार बार बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, मतलब वही चीज आप महाराष्ट्र में करने वाले हैं ना सर, तो बीजेपी का तो काम आसान हो गया। कोई टेंशन ही नहीं।
नहीं, अभी अभी महाराष्ट्र में नहीं होगा वो। जी अभी देखिए जो चल रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे, उसके बाद पार्टी ने बोले कि ठीक है बाला साहब, थोड़ा तो आप जाके बात करो, आप सीनियर है। तो महाराष्ट्र में नहीं होगा ये जी महाराष्ट्र में, क्योंकि जो छाछ का, वो बोले ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जी। तो वैसा अभी होगा, अब महाराष्ट्र में होने वाला नहीं है। तो मतलब हरियाणा की और डिफीट जो है आपके लिए इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कहने का हाँ मतलब हाँ, ये यस यस, यू हाँ वोकन हाँ अप, वेक अप कॉल। जी प्रदीप Yeah, जी, yeah. आप जी से पूछ रहे थे। आरती जी, now डॉक्टर धोने साहब किस प्रकार से चैपलिन when टेलर I से अपने हाथ was धो when रहे I हैं? was listening to ढोने साहब, Yes. मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए, so whatever he has said, that is basically proving it कि कांग्रेस really has to think about themselves. डॉक्टर ढोनेस नहीं, हार्ट इज सही विद बात है, यू, बिल्कुल Then- बिल्कुल डॉक्टर सही बात ढोनेस है। हार्ट इज विद द जी हाँ, बीजेपी। जी हाँ, नहीं, जी हाँ। आरती जी ये सही बात है, कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन हमारे नेता है एक दूसरे को गिराने के इसमें रहते हैं। ये कांग्रेस की बहुत खराब आदत है, कांग्रेस के नेताओं की। देखिए हमारी विचारधारा अच्छी है, हमारे नेता अच्छे हैं। राहुल गांधी ऐसा है, किसी को डरते नहीं और गरीबों की बात करते हैं। ना अदानी को मिलते हैं, ना अंबानी को मिलते हैं, उनके यहाँ शादी को जाते नहीं। वो गए थे, मुकेश हाँ, अंबानी लेकिन कभी कभी कार्ड जब लेके, काम रहता है नहीं तो सुनिए, सबैटिकल पे निकल नहीं जाते हैं। when नहीं, some निकल गए hot वो, बराबर है issues are वो। on, नहीं नहीं then he नहीं goes on नहीं 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 sabbatical. He is not there whenever some important issues are there. So ये थोड़ा नहीं डर लगता है। 50 साल के बहुत युवा है, उनको अभी बहुत घूमना फिरना बाकी है, तो उन्हें देश की तरफ देखने के लिए शायद समय नहीं है सर। और नहीं नहीं, दूसरी देख बात देख ये भी है नहीं, कि बहुत देखिए बार उनके बयान देखिए ऐसे उन्होंने जो, होते हैं, नहीं नहीं आरती जी, उनके ऐसा बयान है ऐसे होते वो हैं, राहुल धोनी जी बहुत गांधी बार जी, उनके देखिए उनके 2000, नहीं बयान नहीं, ऐसे सुनिए होते सुनिए हैं सुनिए कि सुनिए, वो खुद ही राहुल उनसे गांधी, पलट जाते हैं। नहीं ठीक है, आप आपका हो गया तो मैं बात करता हूँ। जी जी जी, देखिए बोलिए। राहुल गांधी बहुत सीरियस नेता है। राहुल गांधी जी ने 2020 में जब कोरोना चल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी जी ने बताया कि भाई देश में बहुत खराब हालत होने वाली है, सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तब ये जो शायद नड्डा ही थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो जी उन्होंने बताया था कि देखिए राहुल गांधी जी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा मालूमात है। गांधी फैमिली और राहुल गांधी को ज्यादा पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है। उन्होंने बोला है ऐसा नहीं होने वाला, और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ऐसा होने वाला है। तो राहुल गांधी जी ने जो बोला वैसे ही हुआ। जो बाद में कोरोना जो हुआ फैला, राहुल गांधी जी ने बोला था वैसे ही हुआ। राहुल गांधी हमेशा बराबर बोलते कि ये उद्योगपतियों का कर्जा क्यों माफ कर रहे हैं, ये हर बात पे वो जाते, किसानों के लिए जाते हैं। राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री अगर बनना रहता था तो वो 2009 में बन सकते थे, 2009 से 14 के बीच में प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन ना राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने में इंटरेस्ट है, ना सोनिया गांधी को इंटरेस्ट है। वो तो दूसरे को बनाते हैं, तो वो जी उनको हाँ, कुछ लेकिन नहीं। वो संवैधानिक पद तो पे सोनिया जो जी, व्यक्ति आपके पार्टी से सोनिया बैठते गांधी, हैं, उनका सोनिया पूरा गांधी अपमान करने का भी पूरा हक रखते हैं वो। हमने ये बहुत किसका? बार देखा। अभी रिसेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी अभी मैंने टीवी पे देखा था कि कोई एक नॉमिनेशन फाइलिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन नहीं, खड़गे गलत जी बात, बाहर गलत बात, खड़े गलत थे। बात। ये ये सब टीवी आपका लिखा जो हुआ मालवीय है है ना, सर। सुनिए सुनिए, आरती जी सुनिए, ये जो सिर्फ अमित ये बात मालवीय नहीं है है आपका सर, आईटी सेल का, इससे ये पहले आईटी भी सेल हमने का, बहुत नहीं बार नहीं, देखा मेरी है बात कि नहीं नहीं नहीं, प्राइम गलत बात है। मिनिस्टर वेयर आपको ही एक बात सपोज्ड बोलता टू हूँ, सुनिए। सिट, you know, he was every time the prime minister was sidelined during Congress नहीं rule, नहीं नहीं and Gandhi family have taken over the नहीं charge. नहीं नहीं So नहीं नहीं, that all India has आपका होने दे, seen. मैं बाद में बात करता हूँ। जो देखा है वही बात कर रही हूँ मैं। कोई अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई हूँ। जब ये मनमोहन सिंह जी, ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान थे, तभी भी हमने बहुत बार देखा है कि जो स्टेटस को उनका है, जो संवैधानिक पद उनके पास है, उसके बावजूद उनका पोजीशन क्या होता था, व्हाट से ही हैज टू हैव एंड व्हाट इंटरवेंशन गांधी फैमिली यूज्ड टू डू इन एवरी मैटर। बोलिए बोलिए धोने बोलिए साहब। बोलिए ढोनेस ऐसा साहब है, प्लीज। देखिए ऐसा है, ये अभी जो वायनाड में जो हुआ, जी ये जो इसके जो है, इसके जो प्रोपोगंडा किसने किया, ये झूठ खबर किसने फैलाई, अमित मालवीय जो आपके आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने फैलाई कि ये खड़े थे। हकीकत ऐसी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे, उनके बाजू में प्रियंका गांधी बैठी थी, उनके बाजू में राहुल गांधी बैठे थे, और उनके पीछे, राहुल गांधी के पीछे पिछले लाइन में सोनिया गांधी बैठी थी, वेणुगोपाल भी बैठे थे। ये सब आया है, ऐसा होता नहीं। अरे राहुल गांधी तो इतने रिस्पेक्ट करते हैं कि पानी जब जाहिर सभा में है तो पानी की बोतल खोल के वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथ में देते हैं कि आप प्यास लगी, ये लो पानी। ये तो ये राहुल गांधी बहुत पोलाइट आदमी है, बहुत पोलाइट नेता है, हमने उनको करीब से देखा है।
ये जो बातें धोनी हैं साहब, कि ये राष्ट्रीय आपने अध्यक्ष का आरोप अपमान लगाया, वगैरह सब खड़गे गलत साहब को बातें आपने बाहर डाला, सब गलत बातें हैं। आपने अंबेडकर को भी ऐसे ही किया था। बाबा साहब अंबेडकर को आपने ये 1950 में हराया, 1954 में हराया। बीजेपी ने पूरे एक लिस्ट निकाला बिल्कुल जहां सर, आप मैं इस मुद्दे एंटी पर दलित बात करना चाहूंगी कि दलितों के बारे में जब भी कांग्रेस ने बात की है, अभी भी उनका एक स्टेटमेंट राहुल जी का कुछ दिनों पहले आया था कि अगर कांग्रेस पावर में आती है तो आरक्षण हटाएंगे। तो फेक नहीं नैरेटिव चलाया भी नहीं इन्होंने नहीं कि नहीं भारतीय नहीं जनता नहीं पार्टी अगर नहीं, पावर में ठीक आएगी है तो मैं आरक्षण बताऊं। हटाएगी। उसके नहीं बाद ये नहीं पहली नहीं बार नहीं है सर, मैं 2-3 इंसिडेंसेस बताऊंगी नहीं मैं कि आपको बताता हूँ, सब बताता हूँ। राहुल गांधी जी मुंबई दौरे पे आए थे, प्रकाश अंबेडकर जी ने उनको खाने पे बुलाया था, तब राहुल गांधी जी गए नहीं। तो दलित जो है, दलित वर्ग जो है, ये हमें हमारे साथ तो चाहिए, लेकिन हमारे साथ खाना खाने नहीं बैठना चाहिए। ये मानसिकता कांग्रेस की है। ये अपने कर्मों से दिखाते हैं, बात करके नहीं, नहीं किसी चीज नहीं, ये अपने कर्मों से दिखाते हैं। अभी बोलिए। देखिए जी जी जी, धोनी साहब, ये जो बताया धोनी अभी साहब, आरती मैडम ने, एक मिनट अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं प्लीज। जो अभी अभी बात करी आरती पुगाकर जी ने कि खड़गे साहब बाहर थे और फिर बाहर से दरवाजा बंद कर लिया गया और नॉमिनेशन अंदर फाइल कर लिया गया था। उसके बाद कांग्रेस ने फुटेज रिलीज करी, कांग्रेस ने मैम फुटेज रिलीज करी उसके बाद, जहां पर खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी दोनों साथ में बैठे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, विच इज क्वाइट ट्रू बाय द वे। तो this happens, by the way, this happens during elections. As far as Mr. Amit Malviya is concerned, जिनका इन्होंने नाम लिया अभी, he has been given a particular task to do. He is doing that task well or badly, whatever, he is doing it. जी ढोने साहब, आप कुछ बोलने जा रहे थे, प्लीज बोलिए। उसके बाद मैं महमूद देखिए देशमुख ऐसा साहब के पास आता हूँ। ये जो राहुल गांधी जी और प्रकाश अंबेडकर साहब की जो हुई, जी। जो मुंबई में हुई थी मीटिंग शिवाजी पार्क में, तो जी। उस नहीं मीटिंग सर, के बाद में जब ने सुनिए बोलिए, सुनिए बोलिए, आप वो बोलिए। मीटिंग में आए थे राहुल, वो जो प्रकाश अंबेडकर जो है मीटिंग में आए, आखिरी में बीच में आए, सब नेता बैठे थे और बीच मीटिंग जब भाषण शुरू थे तब प्रकाश अंबेडकर जी आए थे। तो प्रकाश अंबेडकर जब आए तो सबसे पहले राहुल गांधी जी उठ के खड़े हो गए और उन्होंने उनको हाथ मिलाया और सभी नेता, स्टेज पे बैठे सभी नेताओं ने खड़े होके, अपनी जगह से खड़े होके उनका स्वागत किया, उनको सम्मान दिया, एक बात। और उस वक्त उन्होंने बोला होगा कि आइए हमारे घर पे खाने के लिए। तो एंड टाइम पे अगर बोले तो राहुल गांधी के भी प्रोग्राम पहले से तय होते हैं, तो एंड टाइम पे बोलने पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर पहले से बोलते थे तो हो सकता था, लेकिन एंड टाइम पे अगर बोलेंगे कि अभी आप जो चलना है रात में खाना खाने के लिए, तो हो सकता है उनका दूसरे प्रोग्राम रहते हैं तो नहीं हुआ खड़गे होगा, जी की लेकिन क्या ऐसा नहीं आपने है। इंसल्ट और करी है नहीं, प्रकाश ये बताइए अंबेडकर जी सर। को कौन दलित सर मानता है सर, मतलब? जो मेन इशू जो है, नहीं, जो नहीं आरती जी ने मानता अभी है, ये आपको बात नहीं पूछा, है, सर। क्या खड़गे जी की बेइज्जती की गई, ये बताइए नहीं धोनी नहीं साहब। नहीं हुई, नहीं बेइज्जत कहाँ हुई बेइज्जती? खड़गे जी को बहुत सम्मान है पार्टी में, खड़गे जी को बहुत सम्मान है। खड़गे जी, देखिए खड़गे जी सामने बैठे, सोनिया गांधी पीछे बैठी है, जी सोनिया, खड़गे जी बैठे, उनके बाजू में प्रियंका गांधी, उनके बाजू में राहुल गांधी, और पिछले लाइन में सोनिया गांधी बैठी है, वेणुगोपाल पिछले लाइन में बैठे हैं। ऐसा है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया पार्टी ने, तो ऐसा नहीं है, उनका पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। और कई सभाओं में देखिए वो भी जैसे बच्चे के जैसा देखते हैं राहुल गांधी को भी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगी दोनों की, तो उनमें आपस में इतना प्रेम है कि वो बोलते हैं कि आप बैठो, तो राहुल गांधी नहीं 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 मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठिए, मैं बाजू में बैठता हूँ। और जब फोटो निकालने कोई तो भी आया था, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन उस वक्त फोटो जब निकालने की बात थी तो राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बीच में रखा, जिनके साथ निकालना उनको बाजू में, एक साइड में खुद हो गए, बाजू में खड़े हो गए। तो ये पूरा रिस्पेक्ट देशमुख देते हैं। सब गलत बातें कि ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं। देशमुख जी, आप देखो, सैफरन टेरर सुशील कुमार शिंदे जी ने पहले बोला था, आज डॉक्टर धोले साहब बोल रहे हैं कि वो खुद मानते नहीं उसको, बोले कि सुशील कुमार शिंदे जी क्या बोले क्या नहीं बोले, ही इज वॉशिंग हिज हैंड्स ऑफ। आप ये दोनों चीज को कैसे देखते हो? क्या कांग्रेस कभी फैक्ट बोलते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, कैसे देखते हो आप? देखिए उस वक्त मतलब सुशील कुमार शिंदे जी ने जो भी मतलब बयान दिया है, उस वक्त के हालात क्या थे, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी, उसके मद्देनजर उन्होंने जो कहा था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो बहुत ही सीनियर लीडर है और उन्होंने अगर कुछ कहा होगा तो कोई बहुत ही सूझबूझ से कहा होगा। उस बारे में बहस करना
गलत है। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो इंसल्ट किया गया, ऐसे किया वैसे किया, जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख भोग रही है इस देश के अंदर, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ भी इन्होंने क्या बर्ताव किया। देखिए, इस तरीके से छीटाकशी करने का बंद कर दीजिए। इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मैं तो यही कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार हो या महाराष्ट्र में इनको जो भी मौका मिला था, आप महाराष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं, जो बेरोजगार नौजवान है उसके लिए क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या कर, अस्पताल का मसला हो, स्कूल का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप बात कीजिए, हेल्थ के मामले में बात कीजिएगा, सर डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए। ये फिजूल बातें राजनीतिक लोगों को शोभा नहीं देती, मैं समझता हूँ। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, वो अमित मालवीय जो मतलब आईटी सेल लेकर बैठे हैं, लेकिन वो सिर्फ यही चलाते रहते हैं, हमेशा फेक न्यूज चलाते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक माहौल मतलब गलत माहौल क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, एक हेल्थी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैं समझता देशमुख हूँ। साहब। और जी जी देशमुख साहब, एक बहुत एक अच्छे इंपॉर्टेंट काम सवाल के है लिए मैं समझता हूँ सबने मिलकर आगे बढ़ना जी, चाहिए, आपसे न कि रिलेटेड इस सवाल तरीके है, से। आपसे खुद से। जी महमूद देशमुख जी, आपका जो व्यक्तिगत कार्य है, आपका जो व्यक्तिगत काम है, वो हम लोगों ने देखा है। शायद आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, डॉक्टर ढोने और आरती पुगावकर जी, महमूद देशमुख जी पिछले 25 साल से मुंबई के स्लम्स में काम कर रहे हैं, पुनर्वसन के लिए, हर चीज़ के लिए, बाकी हर चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी में है। तो मैं तो इनसे बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि सर आप वापस कांग्रेस में जाओ, आपकी जगह वहाँ पर है, क्या कर रहे हो, या बीजेपी में चले जाओ, दोनों में से एक जगह जाओ। लेकिन कांग्रेस में जाना बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, वेरी फ्रेंकली। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन महमूद देशमुख साहब जी, मैंने जैसे कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी मेरे बड़े अच्छे, बहुत आदर करता हूँ, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। आई एम बीइंग, वो डिस्क्लेमर आता है ना नीचे कि भाई अगले दिन कोई बोलेगा यार ये तो राजीव बजाज जो है, ये तो देवेंद्र फडणवीस जी का बड़ा अच्छा दोस्त है, हूँ मैं मानता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे फ्रॉम 2014 टू 2019, उन्होंने एक जीआर निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बाद आरती जी मैं आपके पास आऊंगा। महमूद देशमुख साहब, वो जीआर में ये लिखा था कि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी जब भी कोई परमिशन देगी स्लम रीडेवलपमेंट के लिए, तो हर एक का रिहैबिलिटेशन इन सिटू होगा, यानी वहीं पर होगा, लोगों को घर वहीं मिलेंगे। ये जीआर देवेंद्र फडणवीस जी ने निकाला। अब आप मुझे बताइए महमूद देशमुख साहब, क्या ऐसा हो रहा है, या जो स्लम डवेलर्स हैं उनको उठा करके पता नहीं कहां फेंक दिया जाता है? आप बताएं सर। देखिए, ये सही सवाल पूछा अभी बजाज साहब आपने। आप भी जानते हैं, बांद्रा वेस्ट में आप भी मेरे साथ में आए थे जब महाराष्ट्र नगर कितनी बार आए सर? 4 या 5 शो किए आपके साथ वहां पे। जी बोलिए। हाँ, वहां पे भी आप आए थे। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से लोगों को उजाड़ा जा रहा था और उजाड़ दिया गया। उसी तरीके से भारत नगर में अगर आप देखा जाए, आप देखेंगे जो 33-5 की लड़ाई लोग वहां पे लड़ते हैं। मैं एक देखिए, किसी भी राजनेता में जो चुना हुआ लोक प्रतिनिधि होता है, उसके पास एक संवैधानिक अधिकार होता है, वो बैठ के मतलब हाउसिंग मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, वहां बैठ के मसले हल कर सकता है। लेकिन उसके लिए वाकई में ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी से वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो लोगों के सवाल हल करे, न कि दलाली करने का काम करे। नेता ऐन वक्त पे आप एक स्टंट करते हो, ड्रामा करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। आप जमीन पे उतरने की बात करोगे, वहां पे बताओगे मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं, ऐसा नहीं है। सेम तरीके से संत ज्ञानेश्वर नगर में भी यही हाल हुआ, वहां पे भी लोगों के साथ में वही हो रहा है। और फिर चुने हुए नेता जो है वो कहते हैं कि भाई हमने आपकी लड़ाई लड़ी है। ये झूठ, ये धंधा बंद कर दे। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कहना पड़ता है आपको कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर जनता किसकी तरफ देखे। ये सही कहा आपने, फडणवीस जी जो उन्होंने जीआर निकाला, उनका कहना सही था, लेकिन वो आज उन्होंने ये तरफ देखना चाहिए था। पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर जिस तरीके से मुंबई शहर में झोपड़ी धारकों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और खास करके पुलिस वालों का, मतलब पुलिस वालों को आगे किया जाता है। आप एसआरए में अगर जाएंगे तो एसआरए कहते हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। म्हाडा से पूछो तो म्हाडा बोले कुछ नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अरे करेगा कौन? और मैं खास करके भारत नगर के बारे में कहना चाहता हूँ। भारत नगर की जो बात है, जो 33-5 और 33-10 के बीच की जो लड़ाई है, वहां के जो लोग हैं वो घर मांग रहे हैं, ठीक है, आप उनके बारे में मत सोचिए, लेकिन जो रेवेन्यू 80,000 करोड़ का रेवेन्यू जो भारत नगर की वजह से डूब रहा है, 42 एकड़ लैंड जो है, जो म्हाडा लेआउट है, वो वहां पे जो 80,000 करोड़ का जो रेवेन्यू जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डूब रहा है,
उसके बारे में क्यों नहीं देवेंद्र जी ने ध्यान दिया? देशमुख जी, उसके क्या बारे में आपका क्यों नहीं आरोप रघुनाथ सिंह जी ने ध्यान आरोप दिया? भारत नगर में बुद्धपुर बिल्डकॉम ये अडानी का कंपनी है, अडानी का सिस्टर कंपनी है, और 44 एकर्स लैंड जो भारत नगर में है, जो सारा डिस्प्यूट जो चालू है, जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी, एक तो 44 एकर्स ये भारत नगर का, और आगे जाके तो संत ज्ञानेश्वर नगर का 10 एकड़ जो शाहिद बलवा और विनोद गोयनका डेवलप कर रहा है। तो ये दो लोग 44 एकड़ से 10 एकड़ अपने आप में बांट के ले लिया, सरकार ने उनको दे दिया। तो आपका ये कहना कि अडानी और शाहिद बलवा के सामने किसी का चलने वाला नहीं है? यही मैं कहना चाहता हूं। क्या शाहिद बलवा, डीबी रियल्टी या शिव इंफ्रा, रिवर वॉक एलएलपी के जो है आरती ग्रुप, ये जो शाहिद बलवा ये सरकार से बड़े हैं? क्या सरकार ने देखा नहीं कि इनकी हरकतें क्या हो रही है वहां पे? उसके बावजूद मतलब लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, सरेआम लोगों को उजाड़ने की बातें हो रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जबरदस्ती सर्वे किया जा रहा है, उसके बावजूद भी सरकार सोई हुई है। क्या ये लोग सरकार से बड़े हैं? तो फिर जब हमको ये कहना पड़ता है कि मतलब ये जो सरकार है, केंद्र में बैठी हुई सरकार ही अगर अदानी के लिए काम कर रही है, अदानी अंबानी के लिए अगर काम कर रही है, तो फिर ये राज्य में बैठे हुए नेता भी उनके लिए काम करते होंगे। और रही बात, जैसे भी आपने कहा चुना हुआ लोक प्रतिनिधि की बात, आप कहते हैं ना, चुना हुआ लोक प्रतिनिधि रास्ते पे उतर के ड्रामा क्यों करता है? तुम्हारे पास संवैधानिक अधिकार दिया है, तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारा उप मुख्यमंत्री, उसके पास बैठ के तुमने क्यों नहीं मसला हल किया? क्या ये मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हो लोगों के बीच में आके? यार मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा था। अरे बेवकूफ बनाने के धंधे बंद कर दो। लोग जनता जो है वो समझदार है। आपने क्या किया क्या नहीं किया, या आने वाले कल में लोग जनता आपको दिखा देगी, ये मान के आरती जी, चलिए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। ये हो गया, अब इनका वक्त तो खत्म हो चुका है, लेकिन इतना मैं दावे से कहना चाहूंगा कि देखिए वर्षाताई गायकवाड़ जो मतलब यहाँ पे एमपी है कांग्रेस पार्टी से, वो भी लड़ाई लड़ रही है। और भले ही अब ये सरकार बदल जाएगी, सरकार भी बदल जाएगी, और आने वाले कल में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, ये पूरी उम्मीद है जिस तरीके से धारावी की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी तरीके से भारत नगर में, संत ज्ञानेश्वर नगर में भी मैं समझता हूँ वर्षाताई गायकवाड़ है, या आने वाले जो भी लोग प्रतिनिधि यहाँ पे चुन के आएगा, वो यहाँ पे मतलब इंसाफ दिलाएगा लोगों को। जी आरती जी, दिस वाज अ ग्रेट GR, a government resolution, government ruling brought out by देवेंद्र फडणवीस जी कि इन सिटू रिहेबिलिटेशन एज इज वेयर इज, जहां पर आपका घर है वहीं पर आपको घर मिलेगा, और आगे जाकर के जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए वो सब मिल जाएगा। इट वाज फैंटास्टिक। तो उसके बाद क्या हुआ? भूल गए क्या मतलब? और क्या कोई और लिमिटेशंस थी, कोई बंदिशें थी कि मतलब व्हेन देवेंद्र जी केम बैक, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं थे, वेरी फ्रैंकली वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं तो खुद बहुत पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड था कि देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आई एम श्योर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लॉयलिस्ट हैं और सपोर्टर हैं, वो सब लोग यही अपेक्षा कर रहे थे सुबह सुबह कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर मालूम पड़ा कि नहीं, ही विल बी सिटिंग आउटसाइड। फिर मालूम पड़ा नहीं, हुक्म हुआ है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाइए। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इतना बड़ा दिल दिखाना, ये जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है स्टेट का और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट एक्सेप्ट करना, हैट्स ऑफ टू हिम, आई एग्री। लेकिन इसका क्या हुआ? व्हाई डिडंट ही लुक एट दिस कि स्लम रिहैबिलिटेशन इन सिटू होना चाहिए? आरती जी। Sir, if we just see the whole Mumbai, there are many pockets where slums are there. अभी जो देशमुख सर ने जो बात की है, and as you introduced him that he has worked deeply into slums. Okay, I myself come from a slum. मेरा जन्म स्लम में हुआ है। मैं आर्थर रोड जेल के यहाँ पर सातरस्सा विभाग जो है वहाँ पर रहती हूँ। तो हमारे यहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट चला उसको करीब करीब 20 साल लग गए लोगों को अपना घर वापस मिलने के लिए जी। तो ये जो SRA अथॉरिटी है, स्लम का जो प्रॉब्लम है, ये पूरी मुंबई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल भाई शेट्टी जी भी इसके लिए लगातार लड़ाई करते रहते हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे कुछ दिक्कतें, अभी आपने स्पेसिफिक GR और आने वाले ये जो अगले 2.5 साल के बारे में पूछा, उसके लिए थोड़ा इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करके मैं ज़्यादा अच्छे से इसके ऊपर बात कर पाऊंगी। लेकिन ये समस्या है, ये मैं मान्य करती हूँ, और देवेंद्र जी आने वाले समय में इसके ऊपर ऐसा अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि डिबेट की शुरुआती में ही मैंने कहा है कि जब वो किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ही मेक इट अ पॉइंट कि उसका एंड भी सही से हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में ये जो SRA से रिलेटेड जितनी भी डिस्प्यूट्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स है,
उसके ऊपर एक अच्छा सोल्यूशन देवेंद्र जी लेकर आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज एंड आई नो इट्स बीन लॉन्ग, बट मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ये हो जाएगा सर। आरती जी, सेकंड थिंग आई वांट टू नो, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया आपका डेवलपमेंट का, जो आपने रिपोर्ट कार्ड दिया, इट्स फेबुलस, इट्स अमेजिंग। शक्तिपीठ हो, वेरियस थिंग्स जो आपने गिनाया, कंपनीज कमिंग इन 80,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, बट कांग्रेस का कहना इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज फॉलन टू 10th पोजीशन आफ्टर महायुति हैज टेकन ओवर। आप महाराष्ट्र 10वां स्थान पर आए हैं। 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स आपने अभी तक वैकेंसीज फिल नहीं किए। 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यू हैव नॉट फिल्ड। यंग फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। आरती जी, ये इनका कहना है। और अवकाल में जो अवकाल हुआ उसमें आपने फार्मर्स को कॉम्पेंसेशन बिल्कुल नहीं दिया। ये क्रॉप इंश्योरेंस 1 रुपया का, वो टोटली एक मिसलीडिंग स्कीम है। फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, पूरे बेनिफिट ये क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज को मिल रहा है। तो ये चार्जेस कैसे आप निगेट करेंगे आरती जी? नहीं सर, नाम्बियार सर, वॉट एवर यू आर सेइंग, उसमें पहली बात तो मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस अगर ये आरोप करती है कि किसान हो या कोई भी हो उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, सो आई वांट टू निगेट दैट फर्स्ट कि डीबीटी जब से शुरू हुआ है, आप किसी भी फार्मर को पूछो, जो भी लाभार्थी हैं उसके सीधे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। सो देयर इज नो मिडलमैन इन बिटवीन कि वहाँ पे अगर सरकार से 2,000 रुपये आने हैं तो उसमें कहीं से कुछ कट होके उनको 500 रुपये ही मिल रहा है या 5 रुपये मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट इन एनी अंडर एनी स्कीम, इफ गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग सम बेनिफिट टू फार्मर्स, इट इज रीचिंग आउट टू देम। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स पे थोड़ा प्रिपरेशन में टाइम जाता है। इफ वी टॉक अबाउट लाड़की बहन, इफ वी टॉक अबाउट वेरियस अदर फार्मर्स रिलेटेड स्कीम, आप कोई भी किसानों को पूछ लो, उनके अकाउंट में टाइमली पैसे जा रहे हैं। तो ये तो पहली बात हो गई कि सीधा उनके पास पैसे जा रहे हैं सर, और ये किसानों ने आगे आके बहुत बार बताया भी है। यू टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यू टॉक अबाउट की इंडस्ट्री, आई थिंक दैट महाराष्ट्र इज आइडेंटिफाइड और अभी उसकी पहचान ऐसी हो रही है कि महाराष्ट्र इज इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट। तो अगर कांग्रेस की हम माने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो महाराष्ट्र की ये जो पहचान आगे आ रही है कि इंडस्ट्री, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट, ये उसमें मुझे लगता है ये क्या आँख खोल के देखते हैं कि नहीं देखते, यही सवाल है। दूसरी बात, यू टॉक्ड अबाउट एम्प्लॉयमेंट, सो जॉब मेलाज बहुत जगह पे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की नंबर्स भी ज़्यादा बढ़ी है, रिक्रिएशन भी उनका हुआ है, और आने वाले समय में वो नंबर अभी 77,000 तक जाने वाला है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स फिल्ड होंगी। ओके, सो वॉट एवर कांग्रेस इज सेइंग, उनको फिर कुछ आगे लाके बोलना पड़ेगा, बिकॉज द नंबर्स आर स्पीकिंग लाउडर। ओके, और ये दिख भी रहा है सर। तो दोनों साहब, ये बार बार आप बोल रहे हो यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स 125 इरिगेशन फार्मर्स को जोड़ने, नदी जोड़ने का स्कीम्स आ रहा है। जल संपन्न महाराष्ट्र, वैतरना उल्हास नदी का जो एक्सेस वाटर है वो मराठवाड़ों में किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए, उस पर देवेंद्र फडणवीस जी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। इरिगेशन, गोदावरी, मराठवाड़ा, ये जो पाटबंदर जो विकास है उसमें से कितने वाटर रिजर्व्स उन्होंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो ये सब दिख रहा है। और आप बार बार ये कह रहे हैं कि फार्मर्स को कुछ नहीं मिला, डेवलपमेंट हुआ नहीं, ये जो दिख रहे हैं आंकड़े, उसको कैसे आप नकार सकते हो धोले साहब? सर, जब लातूर में पानी नहीं मिल रहा था तो वाटर टैंकर की ट्रेन लातूर तक लेके जाने की भी सोच देवेंद्र जी की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। सो ही, एज आई सेड दैट, कि ही थिंक्स अबाउट एवरीबॉडी, एवरी सेक्टर। धोले साहब बोलिए धोले साहब। की बात है, आप जो किसानों के लिए बोल रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। अभी एक किसान ने एसपी को लेटर लिखा था। हेलो, बोलिए। हाँ, एसपी को पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिखा, मिलने क्यों गया कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन, क्योंकि मेरे अकाउंट में बहुत बड़ी रकम आई है, तो मुझे डर है कि कहीं चोरी बीरे ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कितने अमाउंट आई आपके अकाउंट में? ये पीक बीमा की थी, इंश्योरेंस की। तो उन्होंने बोले मुझे अकाउंट में 21 रुपए आए, 21 रुपए, 21 रुपीज। तो ये ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि इनके अकाउंट में कुछ पैसे आए नहीं, बहुत कम पैसे आए। और ये जो पीक बीमा योजना है, ये तो सिर्फ जो कंपनियां हैं वो कंपनियों के फायदे के लिए है, बाकी उसमें किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा,
किसानों से लेते कम रकम, 100 रुपए कुछ रकम ली जाती है, या 1 रुपया ऐसे भी वो है, कुछ स्कीमें हैं, लेकिन उसमें जो पैसे जमा होते हैं, उस जितने पैसे जमा होते हैं उतने भी किसानों को मिलते नहीं, ये हकीकत है। जी और उसमें उनके बहुत सारी बातें हैं शर्त, और महंगाई इतनी बढ़ गई, किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी, ऐसा मोदी जी ने कहा था। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन किसानों के जो ये खेती में जो लगते थे, फिर वो दवाई हो या मजदूरी हो, उसके रेट डबल हो गए। तो वो डबल हुए, उनके खेती करना मुश्किल हो गया, और खेती के लिए लागत जो है वो डबल हो गई, उनका इनकम डबल नहीं हुआ, इनकम तो कम ही हुआ, मुनाफा कम हुआ, वो दुगनी जो मुनाफा बता रहे थे वैसा हुआ नहीं। तो ये मोदी जी के राज में हो रहा। जहां तक बात है कि ये अभी ये बताया आपने कि अदानी और अंबानी, ये महमूद देशमुख साहब ने जो बताया अभी कि ये एक सरकार के ऊपर है क्या, अभी अदानी और अंबानी जो है ये महाराष्ट्र के सरकार के ऊपर ही है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बॉस है दिल्ली में बैठा हुआ मोदी जी है, और वो मोदी जी के दोस्त है, मोदी जी के कंधे पे हाथ डालते हैं वो अंबानी जी। तो ये जो बातें हैं, तो उनका जो है, उन जो मोदी जी का बोलेंगे वैसे होगा। अब मोदी जी के दोस्त है तो उनको कौन बोलेगा, वो शाहिद बलवा हो, मित्तल हो, पारेख हो, अदानी हो, अंबानी हो, आज इनके ही चलने वाली है, क्योंकि मोदी जी का हाथ, मोदी जी का दोस्त है वो। तो इसलिए फडणवीस जी क्या कर सकते उसमें, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन ढोने साहब, जहां तक देवेंद्र जी की पॉपुलैरिटी का सवाल है, आर यू श्योर कि जहां तक आप जैसा बता रहे हैं कि भाई पॉपुलैरिटी कम हुई है वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल लॉयल हैं साहब देवेंद्र फडणवीस जी को लेकर के। नहीं, मैं देखिए बोलिए सर, बोलिए। देवेंद्र फडणवीस जी की पॉपुलैरिटी कम हुई ऐसा नहीं बोल रहा मैं, वो विलन है, विलन महाराष्ट्र में वो विलन है, विलन। पॉपुलैरिटी की बात क्या कर रहे हैं, वो विलन है। और मतलब ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनमें उनको दिखता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़े हीरो है, ऐसा है वैसा है, एक्चुअल में वो विलन है महाराष्ट्र की जनता की नजर में। मगर ये लाड़की बहन स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सराहा है, बोले कि ऐसा स्कीम है जो गोवा में 12 साल से हम लोग चला, मध्य प्रदेश में 22 इंस्टॉलमेंट दे चुके हम लोग, और अलग अलग जगह पे इसको सक्सेसफुली चलाया है। महाराष्ट्र ऑलरेडी इतने इंस्टॉलमेंट दे चुके। मगर दोनों साहब, राहुल गांधी जी ने महालक्ष्मी स्कीम चालू किया था, वो सब जगह फ्लॉप हो गया। मोदी जी कह रहे हैं कि तेलंगाना में फ्लॉप हो गया। नहीं, तेलंगाना, देखिए जब कांग्रेस ने जो भी बोला है, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम ने खटाखट हुआ ही नहीं, खटाखट का जो हुआ वो हुआ नहीं। महालक्ष्मी योजना, हाँ नहीं, वो चालू है महालक्ष्मी योजना। तो देखिए आया, मैंने देखा है कि कांग्रेस ने भी दावा किया कि हमने जो योजनाएं चालू की थी वो शुरू है, कोई स्कीम ऐसी बंद हुई नहीं है, सब योजना चालू है। और जहां तक बात है मोदी जी ने बोला, तो वो तो उसको बोलते हैं रेवड़ी, बोलते हैं रेवड़ी बांटना बोलते हैं। और अभी इलेक्शन है तो बोलते हैं अच्छी स्कीम है, इलेक्शन के बाद बोलेंगे कि ये रेवड़ी बांटना है। लेकिन सर हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, मैं छोटी सी बात आपके सामने करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है सर, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। मैं वहां किसी स्टेट, ऐसे स्टेट की बात नहीं कर रहा जहां पर आप कोalition में हैं, यहां पर आप फुल मेजॉरिटी में हैं, आपकी सरकार है, और यहां पर आपकी तिजोरी खाली हो गई है सर। हिमाचल प्रदेश में जो बेसिक स्कीम्स जो आपने अनाउंस करी थी वो भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कर्नाटक में बार बार सीतारमैया साहब बोल रहे हैं सेंटर ने पैसा नहीं भेजा, सेंटर ने पैसा नहीं भेजा। अरे सर ये तो सब होता है ना, वो कहते हैं जीएसटी का पैसा नहीं आया, नहीं आया, वो नहीं। हाँ बराबर है, बराबर जी। नहीं, तो अब आप बताएं, देखिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि उनके जो स्टेट है उनको जीएसटी के पैसे दिए, और बाकी जो जहां पे कांग्रेस की सरकार है या अन्य विपक्ष की सरकार है, नॉन बीजेपी सरकार है, वहां पे उन्होंने पैसे रोक दिए। तो ये तो हो ही रहा है ना, ये तो बहुत दिक्कत बड़ा तो आती है ना। सर ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। जीएसटी काउंसिल जो है उन्होंने ये कहा है कि आप हमें बताइए तो सही कि कब ड्यू था, क्या ड्यू था। जीएसटी काउंसिल,
बजाज सर, साहब ऐसा तो जीएसटी मत बोलिए काउंसिल सर, की क्या प्लीज। बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट आजकल क्या हो रहा आपने देखा है? जी देखा। जीएसटी काउंसिल के किस खेत की मूली है जीएसटी काउंसिल? जहां सुप्रीम कोर्ट के जज भी उनके सामने नहीं जा रहे। पूरे भारत में जो ये चंद्रचूड़ साहब की जो इमेज थी खत्म हो गई। उनके घर पे गणपति को बैठाया, बोले भगवान को मैं ये करता हूँ कि मुझे शक्ति दे। तो क्या फैलाना चाहते हैं आप? ये भी बीजेपी की सर विचारधारा के हैं। किसी चीफ जस्टिस के घर पे जाना, गणपति की पूजा करना गलत बात है क्या? क्या गलत बोल है, रहे हैं सर गलत आप? पूजा ऐसा करना कैसे बोल गलत रहे क्यों नहीं है। गलत है? देव जी हाँ। नहीं 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 नहीं, उनका जो है सुनिए, जो जज लोग रहते हैं उन पे कायदे से ऐसा है कि उन्होंने लोगों से संपर्क में नहीं रहना चाहिए। हमारे बाजू में जज रहते थे तहसील में, बालापुर हमारा गांव है, तहसील की जगह पे हमारे बाजू में जज रहते थे। ना हम उनके घर में जा सकते थे, ना वो हमारे घर में आते थे, ना उनके बच्चे आते थे। तो ये जो पाबंदी है, ये पाबंदी पहले से ये प्रोटोकॉल बना हुआ है कि ऐसा इन्होंने नहीं मिलना चाहिए। उन्हें खुलेआम गए, अच्छा बट उसका मिलने में क्या वीडियो पाबंदी है? शूटिंग भी दोनों हुआ। साहब ये तो समझ ये में नहीं आ रहा। मोदी आदमी जी किसी दिखाना भी मिल चाहते सकता, बट हैं उनका जो कि जजमेंट सुप्रीम इफेक्ट कोर्ट नहीं होना नहीं, कुछ चाहिए, नहीं, उनका विजन मैं इफेक्ट अकेला नहीं ही होना शहंशाह चाहिए। हूँ। अब कि मिलने से क्या होता है? अपना नहीं, अपना मिलने से order होता में है, उसका क्यों नहीं होता है? reflection नहीं आना चाहिए। अच्छा, गणपति की पूजा करने से भी क्या होता नहीं, है वो गलत भी नहीं। बता गणपति की दीजिए। पूजा तो हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ढोंग करते हैं, हम तो सच्चे दिल से पूजा करते हैं। हाय हाय हाय, कमाल है सर, सर, कमाल है। हाँ, हाँ, अच्छा, हकीकत ये है, बताइए ये धोनी हकीकत है। साहब, आरती जी ये एक सेकंड, हकीकत है। आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही की देखिए, बात कर रहा हूँ, आपको धोनी बात साहब से बोलता पूछना हूँ। चाहता हूँ मैं। धोनी हाँ? साहब, नहीं नहीं, मैं एक मिनट मैम, एक मिनट प्लीज, 1 मिनट। आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश हाँ। के? याद रख लीजिए, देशमुख साहब सुनने हाँ। वाली बात है, सुनिए, धोनी साहब आप इसका जवाब देंगे। ही इज द प्राइम हाँ। मिनिस्टर। उनको अगर चीफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस करना है तो सबके सामने, सबके सम्मुख, मीडिया के सामने क्यों पब्लिक करेंगे? में, हर एक को बता करके वो चीफ जस्टिस के घर पे जाएंगे गणपति की पूजा करने के लिए। सर ये इन्फ्लुएंस का जो काम होता है वो बैकडोर से होता है सर, किसी को मालूम ऐसा नहीं नहीं। पड़ता नहीं, सुनिए, कौन सा वो ये मैसेज दिखाना कहां गया। चाहते हैं मोदी जी। क्या बोल रहे हैं सर धोनी सुनिए, साहब? आप तो मोदी ऐसा जी मत बोलिए पूरे सर। देश एरिया को, डिजिटल एरिया मोदी जी जहाँ पर डिजिटल नहीं, एरिया सुनिए, में हैं सुनिए, हम लोग, जहाँ मेरी पे बात सुनिए। सब चीज कैमरा पे आ जाती है सर। जी नहीं, सुनिए सुनिए, मोदी जी कैमरा में आके दिखाना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है, मेरे सरकार के खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी मेरे पास है, सब मेरे पास है, फालतू सर, मेरे ऐसा खिलाफ होता में तो बोलना 400 बंद कर पार दो, चले ही जाते, मैं हम अकेला लोग ही रुकते ही शहंशाह हूँ, नहीं। ये दिखाना चाहते हो। महमूद देशमुख जी, ये दिखाना देशमुख जी चाहते हैं, वो बोलिए, इसलिए बजाज किया जी। उन्होंने, देशमुख जी उन्होंने बोलिए। जानबूझ से किया। बजाज जी will agree with me। महमूद नहीं, देशमुख वो जी बोलिए, आप कुछ बोल हाँ? रहे थे। देशमुख जी बोलिए। देखिए ऐसा है प्रदीप जी, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही Yes, है? yes, we can hear जी you. हाँ जी हाँ। हाँ, देखिए ऐसा है ना कि अभी लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इस पे डिस्कशन किया था कि ठीक है, मतलब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मतलब वो चीफ जस्टिस है और प्रधानमंत्री अगर उनके घर पे जाते हैं कोई बात नहीं, एक देखिए धार्मिक मसला अलग होता है और बाकी सब बातें अलग होती है, कहीं ना कहीं हमको इस चीज को भी नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन वो ऐसे अब लगने लगा, अब ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे कि 2 साल से पिछले केस चालू था, महाराष्ट्र का जो मैटर था ना, शिवसेना उद्धव ठाकरे की सेना मतलब ओरिजिनल है या शिंदे सेना की ओरिजिनल है, एक उम्मीद थी, मतलब चंद्रचूड़ साहब से एक उम्मीद थी यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों को कि भाई बहुत जल्द मतलब फैसला आ जाएगा। लेकिन अब देखते देखते मतलब चुनाव भी डिक्लेयर हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, उसके ऊपर भी उन्होंने फैसला नहीं सुनाया। और परसों जो चीफ जस्टिस ऑफ जो हमारे इंडिया भारत है, उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट आता है, ये जो राम मंदिर के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है, जो फैसला जब सुनाया, उन्होंने जो कहा कि मैं इस फैसला सुनाने के पहले मैंने ईश्वर से मतलब प्रार्थना की। तो देखिए ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हर व्यक्ति को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए हर मामले, लेकिन आप एक मतलब संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं, आप इस देश के मतलब सारे देश की उम्मीदें आपसे लगी हैं, आप ये देश जो है वो संविधान से चलता है, न कि मतलब आस्था पे चलता है ना, न किसी की मतलब प्रार्थना से चलता है। तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो आपने सद विवेक बुद्धि से मतलब फैसला लेने की आवश्यकता है। ये और आप इस तरीके से कह रहे हो कि मैंने इस तरीके से सोचा, ये पब्लिकली आपको बोलने की आवश्यकता नहीं थी, ये बोल के आप संविधान का अपमान कर रहे हो, तो ये एक शोभा नहीं देता, मैं समझता हूँ। ये तो इससे फिर अब लोग ये बोलेंगे, अब उंगलियां उठाएंगे कि वाकई में ऐसा लगता है कि जब वो उस दिन जो मुलाकात हुई थी गणपति के दौर में, है ना,
तो उसमें कुछ तो बात है। जैसे अभी अभी बजाज साहब कह रहे थे कि भाई इन्फ्लुएंस की बात होती है वो अकेले में होती है, ऐसा नहीं है सर। ये मोदी जी जो है ये इन्फ्लुएंस का काम पूरे पब्लिक के लिए, इन्होंने 140 करोड़ के जनता को दिखा दिया। देखिए इस देश का चीफ जस्टिस भी जो है वो मेरे बाजू में खड़ा रहता है, मेरे साथ में है, मैं उनके साथ में खड़ा, उन्होंने मुझे दावत दी है। तो दावत देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका जो असर दिखाई दे रहा है अब, तो मैं हो सकता है कि आने वाले कल में वो भी उनको भी राज्यसभा पे भेजा जाएगा, मैं साफ साफ कहता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। एक संवैधानिक पद में बैठे हुए शख्सियत को संविधान के मुताबिक ही फैसले करने चाहिए, संविधान के मुताबिक ही चलने चाहिए। उनका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट कुछ होता है, उसके हिसाब से उन्होंने रहना चाहिए, न कि ये आस्था की बातें उन्होंने नहीं पब्लिकली नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। जी दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। तो आरती जी चलते चलते आप ये भी बता दें, आज की तारीख में महायुति जो है कितनी सीटें आने वाली जी आपकी? 288 में से 200, सवा 200, 300 था। देन आई कैन सी सोनिया गांधी सिटिंग इन द सेकंड रो, आई कैन सी मिस्टर खड़गे सिटिंग इन द फ्रंट रो, पोलिंग ऑफिसर के सामने खड़गे साहब बैठे हैं मैम वहां पे। चलिए अब आप बताएं 288 में से कितनी कितनी सीटें आने वाली है मैम महायुति की? नंबर तो मुझे लगता है कि हम 20 तारीख को वोटिंग हो जाएगा, फिर 23 को ही उसके बारे में बात करें। बट मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति बहुत स्ट्रांगली फिर एक बार महाराष्ट्र में पावर में आएगी और फिर एक बार अच्छा काम जो पिछले 2.5 साल से हो रहा है वो आगे चलता रहेगा। लोगों के मन में जो है, लोगों ने जो विकास देखा है उसको आगे लेके जाने के लिए लोग महायुति को फिर एक बार जरूर चुनेंगे। वो 1%, लेस देन 1% जो डिफरेंस था, फडणवीस साहब ने कहा लेस देन 1% डिफरेंस इन लोकसभा महाराष्ट्र इलेक्शंस, क्या उसको ब्रिज करेंगे आप आरती जी? सर लोकसभा के समय पे जैसे अभी ढोने जी ने कुछ चीजें एक्सेप्ट की थी कि कुछ गलतियां हुई थी, तो हम भी ये कहेंगे कि लोकसभा के वक्त थोड़ी जल्दबाजी हुई, कुछ गलतियां हुई थी, इस बार वो नहीं होंगी और ये बार अच्छे से महायुति सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएगी। ढोने साहब 288 में से कितनी? 200 या 225? देखिए ऐसा है कि जब अलग अलग चुनाव लड़े थे ये कांग्रेस राष्ट्रवादी, उस वक्त भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सीटें जो 42 और 41 आई थी, और अभी 3 पार्टियां मिला के लड़ रही है और सब जो है 85 का फार्मूला तय है। 15 सीटें पे अभी मालूम नहीं, 5 सीटें बढ़ सकती है, 90 सीटें एक को हो सकती है या थोड़ा आगे पीछे, लेकिन 50% हर एक जो है पार्टी 50% के ऊपर है। तो इसीलिए ऐसे पूरी उम्मीद है कि 170 के करीब तीनों पार्टियां मिला के सरकार 170। क्या बात है साहब? ढोने साहब मगर संजय राउत जी ने बोला 85 हमको अभी मिला है, हम सेंचुरी पार करेंगे। तो अगर यूबीटी सेंचुरी पार करेंगे धोनी साहब, आपको क्या होगा? विदर्भ में पूरा आपका सीट यूबीटी लेके जाएंगे। ढोने साहब संजय राउत ने कहा कि 85 से हम सेंचुरी तक पहुंच जाएंगे यूबीटी, तो 100 सीट्स अगर उनको मिला तो आप 100 के कम आ जाएंगे धोनी साहब। अच्छा बैठिए। देशमुख साहब लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? अच्छा ढोने साहब आपको आवाज आ रही है क्या? ढोने साहब कैन यू हियर अस? नो। महमूद देशमुख साहब, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि स्पेशली जो माइनॉरिटी वोट है वो वन साइडेड पड़ा है एमडीए के पास, लेकिन असेंबली में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है। असेंबली सेगमेंट्स अलग अलग है ना। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस एमडीए जो है उनको काफी एडवांटेज होगा जैसे लोकसभा में मिला? महमूद देशमुख साहब, तो देखिए माइनॉरिटी वोट हो या मेजोरिटी वोट हो, बात सवाल ये नहीं है। सवाल जैसे ठीक है आपने कहा कि माइनॉरिटी वोट वन साइडेड हुआ, तो अभी भी महाविकास आघाड़ी की तरफ ही माइनॉरिटी का वोट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को भ्रम है कि माइनॉरिटी के वोट हम हमारी तरफ लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी होगी। मैं आपके लिए उसके लिए 2 उदाहरण दूंगा कि जिस तरीके से अभी देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो सक्सेस रहे। आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, उनके ही पार्टी का एक विधायक है ना, वो सरेआम मतलब लोगों के बीच में माइनॉरिटी पॉकेट को, मतलब माइनॉरिटी की कम्युनिटी को धमकियां दे रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, मस्जिद में घुस के मारने की बातें कर रहा था। उसके अलावा मैं आपको कहता हूँ वो यहाँ तक उसकी मतलब मजल थी कि वो ये कह रहा है कि भाई पुलिसों को धमकी दे रही
मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को पुलिस सामने है, उनको तक धमकी दी जा रही थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बराबर है। तो आप इसको मतलब कामयाब गृह मंत्री कहेंगे क्या? तो दूसरी बात, ये एक मतलब डर का माहौल पैदा करने की कोशिश बहुत की। दूसरी तरफ एक है अजित पवार जी, अगर किसी को ऐसा लगता वो घड़ी का चिन्ह लेके लड़ने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को भले कितने भी सेक्युलर की बात करें, लेकिन मैं समझता, मैं एक साफ बात कहना चाहता हूँ, जी माइनॉरिटी का वोट डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और जी। एक तरफा बीजेपी को जिताने का काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई ये भ्रम में होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार जो है वो सेक्युलर पार्टी है और उसको वोट दिया जाए, तो मैं समझता हूं वो इनडायरेक्टली तो मैं उम्मीद करता हूं देशमुख साहब आप भी चुनाव में लड़ेंगे इस बार। और महाराष्ट्र का माइनॉरिटी जो है, मुस्लिम समाज, दलित समाज जो सर है, आप चुनाव में लड़ रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। सर मैं बहुत जल्द आपके सामने आ जाऊंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं आपको एक बात कह देता हूँ। नहीं, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करता हूँ कि जैसे अजित पवार जी का इस्तेमाल यहाँ किया, जिस तरीके से एमआईएम का इस्तेमाल कल तक भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसी तरीके से अजित पवार का मतलब इस्तेमाल जो है माइनॉरिटी के वोट को डिवाइड करने के लिए किया जाएगा, ये दिखाकर कि अजित पवार जो है एक सेक्युलर नेता है। लेकिन मैं एक साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो मतलब महायुति में है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना का साथ वाला जो है, वो कोई भी दल होगा वो सेक्युलर नहीं हो सकता। और रही बात अब मेरे चुनाव की बात, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बांद्रा ईस्ट से महमूद देशमुख चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूँ, मैंने पिछले 35 साल 40 साल इस मतलब कार्य के। ऑल द बेस्ट टू यू सर, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दोने साहब आपको आवाज आ रही है सर? दोने साहब, right, I think we've lost him. We do have his picture, but Dhone साहब I think can't hear us or he can't talk back to us. Dhone साहब आपको आवाज आ रही है? All right. देशमुख साहब, all the very best to you, best of luck to you. मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप चुनाव लड़ें, जैसे भी लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं। आपका प्रचार कैसा हो रहा है वो जरूर दिखाएंगे हम लोगों को। थैंक यू सो मच सर। एंड धोने साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, सो नाइस ऑफ यू सर। नमस्कार, नमस्कार sir, Jai Hind, Jai Maharashtra. And we can of course see that footage where Sonia Gandhi is sitting in the second row and Mallikarjun Kharge is sitting right next to Priyanka Gandhi in the front row. That's it there. Take a look. That's it. That gives a lie to whatever Mr. Amit Malia was saying. देख लीजिए. But that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज के शो में सिर्फ इतना ही. हम अपने सारे गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आरती भुगावकर जी भारतीय जनता पार्टी की, ढोने साहब कांग्रेस के और महमूद देशमुख साहब अभी तक आम आदमी पार्टी में थे। मुझे लगता है कि अब वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एज यूजुअल इज नॉट स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन इन महाराष्ट्र। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने जरूर आएंगे इंडिया अलायंस के लिए। प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे आप? It's fantastic. It's election season and Maharashtra is going to experience a fantastic battle. You've got a 6-party fighting around each other, and MNS is there. There's a third front, apart from Mahayuti and apart from MV. So it's a very interesting time for Maharashtra's concerned. Fantastic, fantastic. It's going to be very, very interesting times, and we'll be there with you every step of the way to show you exactly what's happening where and to bring you the inside story of what is really going on behind the scenes. For that, keep watching Nation Now. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारत माता की जय, जय हिंद।